तो हम लोग यहाँ पे पहले कह रहे हैं फिबिया। तो फिबिया हमारी सबसे शॉर्ट बोन होती है और इसको हम शिट बोन भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट थिनेस्ट बोन. Over here we have the three parts. We divide into the three parts. The articular surface and styloid process is called as upper part. It covers the upper end, and this is our shaft, and the lower end, which is known as the which has three parts: melanomas fossa, crust, and triangular facet. Over here we will study the shaft, the muscle attachments, and the borders and the surfaces of the fibula. Over here, if I talk about the upper end, we will study the circular articulate facet, the styloid process or the apex. Styloid process is also known as apex. Over here, we have then a neck where the bone comes and thin out. This is our shaft, and then we have the lower end known as, this is our upper part that is covering, and this is our lower part. Now, here we have lower end. This hole is known as lower end. This hole is known as lower end. And over here we have melanomas fossa. You can see a groove type or a depression, a big depression. Over here we have a crust, and this is our triangular facet, which is triangle in shape. Our crust, over here we have the lower end. We have a triangular facet, a crust in between triangular facet and melanomas fossa, which is known as. And this over here on this side we have inferior angle, and near to the inferior angle this whole part is known as the lower end. Okay, and this is our the lower part and the upper part that we have covered. Over here fibula is easy to study in the bony feature, but it is difficult to study its borders, surfaces, and muscle attachment that we will look today. Over here, fibula is attached with the tibia with interosseous membrane, just like ulna and radius. The homologous to the radius we known as tibia, and where the homologous to the fibula, it is the most fibula, the thinnest and sheet bone, because it is called as sheet bone because it is the front part. Okay, front, from where we can easily thin out, or we can easily mark it as our fibula. Over here we are attached with the interosseous membrane. Over here we have three borders. This we will start from the triangular facet because it is easy to define from the triangular facet. Here I have a triangular facet where we will go, and here we have a line going above, just like this we are going, and this is our anterior border. Okay, this is our full anterior border. This is all our anterior border, and this is our interosseous border. The interosseous border is also divided in two. This is our anterior and interosseous border. Okay, now we will talk about the medial. The groove over here, you can see the largest groove, two grooves. These are known as the medial crust, and we cannot say it is a roughened part. Over here we have, just near to the grooves, we have posterior part. Okay, just posterior part. The surface which is very easily defined or easily defined, deficiented because of its smoothness and the roughness. It is a smooth surface, and we call it as posterior surface, and this is its posterior part or posterior border, which can be differentiated or can be called as vertical ridge. Okay, next over here we have posterior surface. Then we have lateral surface. Lateral surface is just between the anterior and the posterior border. Okay, between the posterior, these two we call as interosseous border. We have first interosseous border, then we have lateral surface, lateral border, and we have posterior and anterior. Okay, between the anterior and posterior surface we can find lateral surface.
Okay, this is our three borders which I have told: anterior border, anterior surface. We have also studied. Okay, the one confusion that we have in all the bones is that we always say that there is anterior border. Near the anterior border, we can see the surface. But literally, I will going to tell you about the difference between the anterior and interosseous border is very less. It's too less that you can't define. You can only feel a small like depression over here on the anterior side. Wait a minute. Anterior side, you can just feel a little depression, a very less depression over here on the crust. Okay, then you can tell it is anterior or interosseous. First anterior, then interosseous. Interosseous membrane comes in between to attach it with the tibia, the second largest bone of our body. So here I am going to tell about fibia fractures and very important fractures that today we are going to study, and in this video we will complete the fracture. Over here we can imagine that we have three types of fracture: the upper end fractures, which is known as proximal part fracture, the distal part fracture, and the shaft fracture, mid shaft fracture. Over here, first we will discuss the distal part, Jeffrey, which we have three types of fractures, which is known as Weber fractures. Weber fractures, we have three types of fractures: 1, 2, 3, or A or B, C. Over, if we can see over here, the Weber fracture 1, it is between below the ankle joint or below the ankle joint, and the fracture number 2, we can see the lateral malleolus fracture, and the third is the lateral malleolus fracture on the shaft. One from here the bone will be break, and one from the mid shaft the bone can break now. Second type of fracture, we have proximal fracture or mid shaft fracture. First, I am going to tell you the treatment of this fracture. We can give the patient screw fixation treatment, or in this fracture what we do is that we have screw and we fix the body, the part of the bone which is torn, and the physios check it properly by telling the bone, and this is the not and this is the most common treatment that is going on. Over here we will going to do EOP and patch slab on over it to intact it. As we have studied that the fibula and tibia are both in tibia and fibula is in both in the contact, so it can work as a splint. No doubt it can work as a splint, but you have to remember in the fibia case we can see that fibia can't stand. Okay, like if I'm holding this, and if there is fracture, any kind of fracture is on fibia, so fibula, then you can't weight bearing. I can't. The patient cannot stand on his foot, and this is the most severe condition, because in this condition, what happens? The patient can't give its weight on the ankle joint or the tarsals or metatarsals. Over here, we have the mid shaft. Fracture over here, what we do is that we do man can't stand because the fracture is in the mid shaft, of any kind, any part of the body, any part of that bone, the part of that bone. So if that part of the shaft is broken or broken down, or the fracture has been clarified, so we can see that the man cannot stand, and by standing there can be a severe pain caused. And when we will check or we will tell the patient to flex and extend, the patient can't extend or flex. It can extend but not properly, but when we will tell them to walk or to stand on it, that bone on that foot, it cannot able to walk or stand on that bone due to the mid shaft big. Because over here, if I will tell the our this malleolus fossa is basically attached, जो है हमारा अटैच होता है एंकल के साथ, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे लिगामेंट या किसी किस्म का फोसे में डिफेक्ट या किसी किस्म का भी अगर हमारे मिड शाफ्ट में ब्रेक डाउन हो गई, तो जाहिर सी बात है ये हमारे जो दोनों
पीसेज हैं, ये जो बोन है वो दोनों पीसेज में हो जाएगी, तो जिसकी वजह से पेशेंट भी कभी भी एबल नहीं होगा खड़े होने के लिए, और मुझे पता चल जाएगा कि पेशेंट खड़ा नहीं हो पा रहा तो फ्रैक्चर आ गया है। अब इस किस्म की वायरिंग में मैं क्या करूँगी, तो पेशेंट को चेक करूँगी एज अ फिजियास्ट, मैं चेक करूँगी उसको, मैं पैपलेट कर सकती हूँ, क्योंकि ईजिली वी कैन से दैट फिबुला इज़ द ईजिएस्ट बोन टू recognize in the patient or a man's body, बिकॉज ये ईजिली हम इससे बता सकते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। सेकंड बात ये है कि हमारा यहाँ पे बेसिकली मसल एट्रोपी हो जाती है। मसल एट्रोपी क्या है? मसल एट्रोपी एक ऐसी टर्म है जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मसल एट्रोपी इज द वेस्टिंग ऑफ द मसल, जिसमें मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है अगर शाफ्ट ही टूट गई है, क्योंकि यहाँ पे आकर तो टेंडन अटैच होगा, तो जब शाफ्ट टूट गई तो टेंडन टीयर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम पेशेंट अब इसके ऊपर वेट नहीं दे सकते, और अगर इसके ऊपर वेट नहीं देगा तो पेशेंट खड़ा नहीं हो पाएगा कभी भी अपनी लाइफ में। तो फॉर दैट कंडीशन वी विल से दैट वी विल पुट अ रोड, और यहाँ पे या तो हम केव वायरिंग कर देंगे या फिर हम रोड डाल देंगे उस पेशेंट के फोन के अंदर टू वर्क एज फिबुला लाइक अ रोड। ओवर हियर वी हैव प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर और नेक फ्रैक्चर। नेक फ्रैक्चर में बेसिकली हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होता है? हमारा ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से हमारा ये फीमर के साथ अटैचमेंट होती है। अब यहाँ पे किसी किस्म का अगर फॉर एग्जांपल जॉइंट बन रहा है, नी जॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे लिगामेंट टूट गया, तो हमारी जाहिर सी बात है ये क्लिनिकल एप्लीकेशन आ जाएगी कि पेशेंट नहीं एबल होगा, अनएबल हो जाएगा, वो आएगा, पेन होगी, उसको स्वेलिंग हो जाएगी, किसी किस्म की भी स्वेलिंग नज़र आएगी तो वो आ जाएगी। अब क्या होगा? नेक फ्रैक्चर में मेरे पास बेसिकली पर्टिकुलर पेन आ जाता है, किसी किस्म का भी पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रही है। अब जब मैं आऊँगी और मैं उसको कहूँगी आप प्लीज़ लेट जाएं, और मैं क्या करने की कोशिश करूँगी, मैं जो एंकल है उसको बेसिकली इंटरनल की तरफ करना शुरू कर दूँगी। इंटरनल रोटेट करवाऊँगी एंकल को, ये जो मेरा एंकल जो इसके साथ अटैच होगा, लेटरल मेनोनस, ये जो इस पार्ट के साथ अटैच, तो मैं इस एंकल को इंटरनली रोटेट करवाऊँगी, और नी जॉइंट जो है उसको मैं एक्सटर्नली रोटेट करवाऊँगी। अब इस केस में क्या होगा? मैं जब ये चेक करूँगी और पेशेंट को करूँगी कि फ्लेक्शन करो, और वो फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, और उस सेम इफ़ेक्ट में या उस सेम पर्टिकुलर जगह पर से पेन होगी, तो फिर हमारी ये वही स्क्रू फिक्सेशन ट्रीटमेंट हम देंगे। और स्क्रू फिक्सेशन ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम पेशेंट को उस पर्टिकुलर पार्ट में हम स्क्रूज लगा के फिक्स कर देते हैं। बेसिकली हमारा जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट है, अगर देखा जाए दोनों में सेम कंडीशंस आ रही हैं, लेकिन बस उसमें फ्रैक्चर्स की किस्म आ जाती है, इसमें फ्रैक्चर्स के टाइप्स नहीं आते, इसमें एक पर्टिकुलर हमने बता दिया। अब डिस्टल पार्ट में हम सेम हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है कि मैं डिस्टल पार्ट पे क्या करूँगी, मैं पेशेंट का एंकल एक्सटर्नली रोटेट करवाऊँगी, और जो नी जॉइंट है वो मैं मीडियली रोटेट करवाऊँगी, इंटरनल की तरफ रोटेट करूँ। वेयर एज प्रॉक्सिमल में मैं क्या कर रही थी, एंकल को इंटरनल कर रही थी और नी को एक्सटर्नल की कर रही थी। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ लिगामेंट्स की, जो कि पहले 3 लिगामेंट्स पे बात करूँगी। ट्रायंगल फैसेट, जो कि हमने लोअर एंड पे पढ़ा था फिबुला का, ये जो ट्रायंगुलर फैसेट है जो कि अभी तक रिमूव हो गया। यहाँ पे जितने भी लिगामेंट्स यहाँ से ऑरिजिन होंगे और अटैच होंगे, हम उनकी बात। पहले तो मैं इंट्रोशियस फिबुलर लिगामेंट की बात करूँ, जो कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन वाली साइड पे होते हैं, और यहाँ पे ये टिबिया और फिबिया को आपस में जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास 2 और लिगामेंट्स इसमें आ जाते हैं। एक है पोस्टीरियर टिबियो फिबुलर लिगामेंट, एंटीरियर टिबियो फिबुलर, जो कि पोस्टीरियर वाली साइड पे हमारा है उसको हम पोस्टीरियर इन्फीरियर कहते हैं। जो एंटीरियर वाली साइड पे वो हमारा एंटीरियर इन्फीरियर है। अब बेसिकली इनका काम भी यही है कि ये टिबिया और फिबिया को आपस में जोड़ के, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा जो है, ये हमारे थे ट्रायंगुलर फैसेट के तीनों लिगामेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट्स फिबुला के इतने ज़्यादा हैं जिनको हमने याद रखने हैं। अभी पहले मैंने ट्रायंगुलर फैसेट की बात की, अब सेकेंडली मैं बात करूँगी लेटरल मेनोनस, और हमने एक और लिगामेंट
हूँ कि दो और लिगामेंट्स यानी मैं और लिगामेंट्स की बात करूँगी। एक है बाइसेप्स फीमोरस टेंडन, जो कि बेसिकली हमारे आर्टिकुलर सरफेस पे सीधा यहाँ पे आकर इंसर्ट करता है। यहाँ पे हम कहते हैं हेड ऑफ फिबुला में आकर इंसर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइसेप्स फीमोरस। आप देख सकते हैं बाइसेप्स फीमोरस के साथ ही हमारे पास पड़ा होता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, या हम इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा नी जॉइंट पे पड़ा होता है और ये अटैच करवाता है सी शेप एरिया में, जो कि ये वाला होता है। ये जो हमारा आर्टिकुलर सरफेस है ना, इसको हम सी शेप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइलर प्रोसेस है और एक तरफ हमारे पास एक अजीब सा सी शेप पड़ा होता है। इसमें हमारे पास बाइसेप्स फीमोरस का सी शेप लगता है, और जब ये हमारा नी जॉइंट के साथ जाके अटैच होता है तो नी जॉइंट से ऑरिजिनेट होता है फिबुलर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, और यहाँ पे आकर सी शेप पे आके अटैच करवा देते हैं। ठीक है, ये थे हमारे हेड के लिगामेंट जो कि हमने मैक्सिमम वाला लिगामेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेड ऑफ फिबुला पे, यानी कि ये हमारा बैक साइड वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमारा ये वाला साइड जिसको हम स्मूथ सरफेस पे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे चीज़ें 3-4 चीज़ें लगी होती हैं। एक तो यहाँ पे एक लंबा सा सोलेसिस मसल लगा होता है। सोलेसिस मसल बेसिकली हमारा टिबिया पे भी लगा होता है, जो कि यहाँ पे आके कंटिन्यू कर रहा होता है इसकी ओरिजिन में। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे नीचे एक फ्लेक्सर हेलिस का लॉन्गेस्ट मसल अटैच हुआ। ठीक है, फ्लेक्सर हेलिस का लॉन्गेस्ट मसल यहाँ पे हमारे पास अटैच हुआ होता है, और यहाँ पे दरमियान में हम देख सकते हैं कि इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास टिबिया का टिबियालिस पोस्टीरियर पढ़ा होता है और टिबिया का टिबियालिस एंटीरियर पढ़ा होता है। तो ये टिबियालिस पोस्टीरियर है, ये साथ ही हमारा इसका कंटिन्यू कर रहा होता है। इसके एंड में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ग्रूव वाटर पर्सनल टेंडन, जो कि यहाँ पे लेटरल मेनिनस से पूरा लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ ग्रीन सा लिगामेंट है, जिसको हम लेटरल मेनिनस के साथ लगा हुआ है, जिसको हम ग्रूव वाटर पेक्टिनी। अच्छा, और जो मैं आपको बता रही थी कि इंफीरियर एंगल बेसिकली हमारा ये वाला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंफीरियर एंगल है, और यहाँ पे बेसिकली हमारा आंकर एंकल जॉइंट लगता है। ठीक है, ये कैप्सूल है जो कि इसको जॉइंट करवाता है, और यहाँ पे भी हमारे लिगामेंट पड़े होते हैं। ठीक है, ये हमारा था बैक साइड। अब फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट साइड में बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। जहाँ पे हमारे पास बाइसेप्स का लगा होता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट हमारा नी जॉइंट से आ रहा होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाइसेप्स फीमोरस आकर इंसर्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक तो यहाँ पे हमारे पास जो लंबा सा मसल जा रहा है ये एंड पे, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस मसल है। फिर यहाँ पे दरमियान में इंट्रोशियस बॉर्डर आ रहा है, ये देख सकते हैं इंट्रोशियस बॉर्डर है हमारा, और इंट्रोशियस बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही जो हमारा पोस्टीरियर में एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गर जो डाउनवर्ड चल रहा था, वो यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा पार्ट नजर आएगा। ये बेसिकली ये आपका फॉर एग्जांपल अगर ये इंट्रोशियस बॉर्डर है तो यहाँ पे अगर आपका हेलिकस का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा आपका हेलिकस लॉन्गस का, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक आ गया हेलिकस का लॉन्गेस्ट मसल, और सेकंड हमारे पास इंट्रोशियस बॉर्डर आ गया। थर्ड पार्ट पे मैंने आपको एक्सटेंसिव डिजिटोरियम का लॉन्गेस्ट मसल बता दिया। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताना है पेरोनियस लॉन्गस, जो कि बिल्कुल लंबा सा पड़ा होता है, और इसके भी फर्दर हम 3 चीज़ें। अब हमारे पास यहाँ पे लेटरल साइड पे या बोलें तो हमारे पास पेट्रोनियस सीरियस मसल आ रहा होता है, और पेट्रोनियस ब्रीवियस मसल। ये हमारा जो कि हम जिसको क्या कहते हैं, हम जिसको बेसिकली कह रहे होते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरियम के जो नीचे वाला पार्ट है, उधर हमारे पास पेट्रोनियस टेरेसिस आ रहा है, और उसी के डीप हमारे पास पेट्रोनियस ब्रीवियस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कवर कर, ठीक है, ये मसल्स जो मैंने कवर। हमारा पार्ट है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन जो फर्स्ट ऑसिफिकेशन ऑफ फिबुला है, वो बेसिकली हमारी जो फर्स्ट प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, वो बेसिकली हमारी 8 वीक ऑफ यूट्राइन
लाइफ में होती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। सेकेंडरी जो है वो बेसिकली हमारा लेट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फिबुला जो है वो लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन को अगेंस्ट चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही रीज़न है कि सेकेंडरी सेंटर जो है वो बेसिकली पहले अपीयर होता है लोअर एंड, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो एपिफिसिस पे होता है, और जो ये प्रेशर एपिफिसिस पे अपीयर होता है वो बिफोर द ट्रैक्शन ऑफ एपिफिसिस, यानी ये एपिफिसिस होता है, ये हमारा डायफिस। उसने बात की है कि यहाँ पे जो हमारा डायफिस है यहाँ पे पहले बोन बनना शुरू, लेकिन एपिफिसिस पर प्रेशर डलना शुरू हो जाता है, यानी ये पहले फ्यूज होता है। सेकेंड पार्ट जो है एपिफिसिस जो है वो हमारा फ्यूज होता है लास्ट, बिकॉज द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन इट कंटिन्यूज टू ग्रो आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, यानी कि वो ग्रो तो पार्ट में करते हैं अलॉन्ग द अपर पार्ट ऑफ द टिपिया विच इज़ ग्रोइंग एंड, ये टिपिया के साथ ग्रो करता रहता है। लेकिन हमने ये बात भी नहीं भूलनी कि जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ द लोअर एंड है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर में हमारा अपेयर होना शुरू कर देता है और 16 ईयर्स तक ये फ्यूज़ हो जाता है। अब मैं अगर बात करूँ सेकेंडरी सेंटर जो है वो अपर एंड अपेयर्स ड्यूरिंग द 4th ईयर एंड फ्यूजेस विद द शाफ्ट ऑफ अबाउट द 18 ईयर्स, जिसकी वजह से हम कहते हैं फिबिया जो है वो लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन को ख़त्म कर देता है, उसको अगेंस्ट चलता है, जिसकी वजह से वो अपेयर टू पार्ट में हो रही है, लेकिन वो फ्यूज़ बहुत जल्दी हो। पहले